Hello students and welcome back. This is the part 2 of Thinkers, Beliefs and Buildings, theme 4 for class 12th. History. I hope you have enjoyed my first part. आपने पहला part देख लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. If you have enjoyed it, please do like, subscribe and share to my channel. That keeps me motivated and I will try and cover maximum topics as soon as possible. So let's quickly begin the part 2. So the first question for part 2 is dash consists of hymns in praise of a variety of deities, especially Agni, Indra and Soma. Options हैं सोमवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद. So students, याद रखना है आपको, इसका आंसर है the Rig Veda consists of hymns in praise of variety of deities, especially Agni, Indra and Soma. हम बुक को रेफर करते हैं. There were several pre-existing traditions of thought, religious belief and practice, including the early Vedic tradition known from the Rig Veda, compiled between c. 1500 and 1000 BCE. The Rig Veda consists of hymns in praise of variety of deities, यानी कि देवती देवी देवताओं के लिए, especially Agni यानी खासकर अग्नि देवता, इंद्र देवता and Soma. Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed, where people prayed for cattle, sons, good health, long life, etc. तो लोग पूजा करते थे, हवन रखते थे, सेक्रीफाइस करते थे, तब ये गाए जाते थे जिस टाइम वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे होने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए सेक्रीफाइसेस करते थे. Mahavira and Buddha questioned the authority of the Yajnas, the Ganas, the Jatakas, the Vedas. इसका आंसर स्टूडेंट्स है Mahavira and Buddha questioned the authority of the Vedas. In cities of Takshila and Peshawar, Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century BCE, 3rd century BCE, 4th century BCE or 5th century BCE, and student, the answer for this is 2nd century BCE. Vardhamana came to be known as Kalhana, Kali Dasa, Mahavira या बुद्धा. सो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जैन धर्म का बेसिकली आपके बारे में बताएंगे इसमें हम आपको. सो वर्धमना came to known as Mahavira. So students, this is the message of Mahavira, beyond worldly pleasures, यानी कि दुनिया की जो फेक प्लेजर्स हैं, खुशियां हैं, आराम हैं, उन सब से परे. So the basic philosophy of the Jainas was already in the existence in North India before the birth of Vardhamana, who came to be known as Mahavira in the 6th century BCE. According to a Jaina tradition, Mahavira was preceded by 23 other teachers or Tirthankaras, literally those who guide men and women across the river of existence. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. उनके हिसाब से, जैनों के हिसाब से, जो जैनिज्म है उनका सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये होता है कि हर चीज़ में जान होती है, चाहे वो पत्थर हो, स्टोन्स हो, पानी हो, कुछ भी हो. So non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants and insects is central to Jaina philosophy. तो आपने देखा होगा जो जैनिज्म होते हैं वो नंगे पांव चलते हैं जिससे कि उनके चप्पल से या जूते से कोई जानवर ना मर जाए. So that is one of the most important idealism. और उनके हिसाब से आपका जन्म मरण आपके कर्म पे डिपेंड करता है. A form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity is known as Vaishnavism, Brahmanism, Bhagavatism और Shaivism. So students, इसका आंसर है it is known as Vaishnavism. So हम बुक में भी रेफर करते हैं. These included Vaishnavism, a form of Hinduism within which
विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डेटी एंड शैविज्म में क्या होता है, अ ट्रेडिशन विद इन विच शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड। तो हमें फर्क भी पता लग गया, वैष्णविज्म में विष्णु, शैविज्म में शिवा। After Buddhism reached East Asia, pilgrims traveled to India in search of Buddhist texts from Japan, Tibet, Korea या China। और इसका आंसर स्टूडेंट्स है they came from China। The internal function of the Sangha was based on the traditions of Ganas, Grahapatis, Yajnas या Jatakas। स्टूडेंट्स इसका आंसर है द इंटरनल फंक्शन ऑफ संघा वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गनास। हम इसमें बुक में पढ़ते हैं, द बुद्धा फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स, दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मेन एंड गहापतीस एंड ऑल्सो हम्बलर फोक, वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। यानी कि हर टाइप के, हर सोशल स्टेटस के लोग बुद्धा के फॉलोअर बन गए थे। वंस विद इन दी संघा, यानी कि एक बार आप फॉलोअर बन जाते हैं और आप संघ के पार्ट बन जाते हैं, ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, सबको इक्वल माना जाता था। हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटी, यानी कि न राजा न रंक, सब भिक्खु और भिक्खुनी बन जाते थे। यानी कि सिर्फ भीख मांग के खाना खाना, चाहे आप राजा थे या आप बहुत अमीर थे या बहुत गरीब थे, आप सब एक जैसे हो जाते थे। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघा वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गनास। ये हमने क्वेश्चन में था, हमने पढ़ लिया था। एंड संघा वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गनास एंड संघास वेयर कंसेंसस वॉज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशंस। यानी भी कोई भी डिसीजन के लिए कंसेंसस होता था, आपस में बैठ के बातें करते थे और एक कंसेंसस पे पहुंच जाते। इफ दैट फेल्ड, डिसीजन वर टेकन बाय अ वोट ऑन द सब्जेक्ट। और अगर वो हम लोग मान लो कि 4 लोग बात कर रहे हैं कि भैया हमें कहीं पे ऐसा काम करना है, पर डिस्कशन एंड हो जाती है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस पर वोटिंग होती थी। तो ये दिस इज हाउ इट वर्कड। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, द लास्ट तीर्थंकारा वॉज मक्खली गोसाला, सिद्धार्था, अजिता, केसा ममलिन या महावीरा। स्टूडेंट्स इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द लास्ट तीर्थंकारा वॉज महावीरा। एंड स्टूडेंट दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2 ऑल्सो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड यू वुड definitely like this and share with your friends. I would be publishing the part 3 also very soon because there are few more questions left, few more topics left from this channel. I hope this is going to help you in your exam. आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, मेरे बेस्ट विशेज आपके लिए हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ दीज वॉज नॉट दी बेगम ऑफ भोपाल? सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम, शाहजहां बेगम या बोथ शाहजहां या सुल्तान जहां दोनों बेगम नहीं थी। इसका सही जवाब है इन चारों में से नूर जहां बेगम ऐसी थी जो बेगम ऑफ भोपाल नहीं थी। थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम बुक में पढ़ेंगे, द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट। तो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, बट नूर जहां बेगम कहीं पे भी नहीं है। So students, thank you for watching this video. I wish you all the success and good luck. As said, keep watching, keep sharing.